Hello friends, welcome to our channel ICSE Easy Learn. So today we are going to deal with the part 4 for a chapter of biology, the circulatory system of class 10th ICSE. So today we are going to study about the heart, like what about the chambers of the heart or about the vessels, blood vessels which enter or leave the heart. Then we are going to talk about the heartbeat and the cardiac cycle as well, and all about the valves that are present in the veins, of the vessels. Also about the circulation, that how the blood circulates in the heart and in the near about all the body. So let's start class. And so, the heart. So, the heart is right in the center between the two lungs and above the diaphragm. So, this is the location of the heart. They can ask in the examination that state the location, in 1 mark they can say that state the location of heart, okay, in the body. So, it is right in the center between the two lungs, not left or right, but exactly in the right, okay. So, I can say that exactly in the right. Here right means in the center, exact at the center of the two lungs. Some people say that it is on the left side, but it is not so. But whenever there is a contraction in the heart, at the time the apex of the heart lies in the left side. So that's why people just have misconception that the heart is on the left side. But if we see biologically what would be correct, then it is exactly at the center of the two lungs and above the diaphragm, okay. Here, so these are two lungs and heart is in the between, and here we have a diaphragm. We all know, we have studied that in the class 9th respiratory. So between the two lungs, right lung and left lung, and above the diaphragm. सो इट इज़ लाइक अ क्लोज्ड फिस्ट, मतलब कि जब हम मुट्ठी को बंद करते हैं उतने साइज़ का है. दैट इज़ 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन विड्थ. So as you could see, we have 4 chambers, okay. We have 4 chambers and we are just considering like left right we are doing it. This one we are considering right and this one we are considering left side, okay. This also right and this left. So the upper ones are known as atria or auricles, and the bottom or downside ones are known as ventricles. So this one is right atrium or right auricle, and this one is known as left atria or left auricle. Then this is right ventricle and left ventricle. So you must consider that the auricles, like we are talking about auricles and ventricles, when we are comparing, you can see that the walls of the auricles are thin, but the walls of the ventricles are thicker. सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कितनी थिन वॉल्स हैं, इसके बीच में कितना कम गैप है, बट आप वेंट्रिकल्स में देखते हो तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा थिकर वॉल्स हैं, ठीक है. और आप वेंट्रिकल्स के अंदर भी कंपेयर करो तो जो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी और ज़्यादा थिकर है. तो देखो, आपकी ऑरिकल्स का काम होता है मेनली ब्लड को लेके आना और वेंट्रिकल्स में डालना, तो उनके लिए ज़्यादा कुछ वॉल का थिक होना नहीं ज़रूरी है, तो थिन वॉल चल जाती है. बट हम वेंट्रिकल्स की बात करें तो वेंट्रिकल्स एक लॉन्गर पार्ट तक ब्लड को पुश करते हैं, इसलिए उसकी वॉल्स थिकर होनी चाहिए, ठीक है. और जो राइट वेंट्रिकल है, आप आगे पढ़ोगे कि ये जो है ये सिर्फ लंग्स तक, मीन्स एक शॉर्टर डिस्टेंस तक हमारा क्या करती है, ब्लड को भेजती है, पुश करती है. तो इसकी वॉल्स लेफ्ट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में थोड़ी सी थिन है. बट लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है, तो ये बहुत ज़्यादा इसको फोर्स लगाना पड़ता है. इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे थिकेस्ट वॉल्स हैं चारों हमारे चैम्बर्स के अंदर से. Now, so let's understand about the structure, basic structure of the heart. So, like you can see that right atrium means right auricle, left auricle, right ventricle and left ventricle. ये चारों चीज़ें आपको पता है. अब हम बात करेंगे कि वेसल्स कौन सी हमारी हार्ट के अंदर एंटर कर रही है और कौन से हमारे हार्ट को लीव कर रही है. तो हम इसको सिंपल रखेंगे, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, ओके. तो पहला है हमारे पास कि हमारी पूरी बॉडी में से जो ब्लड होता है वो हार्ट में आता है, ठीक है. क्यों आता है? प्यूरिफिकेशन के लिए, ये हम सबको पता है. तो अब हम क्या करेंगे, पूरी बॉडी में से अगर हमें ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर लाना है तो हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे वेना केवा का. तो ये चीज़ आपको याद रखना है हमेशा, जो वेना केवा होती है वो क्या करती है, पूरी बॉडी से
जो ब्लड होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको हार्ट तक वो लेके आती है, ठीक है। तो जो हमारे हार्ट का लेवल है उससे ऊपर से जो वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है उसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, और जो नीचे से लोअर बॉडी पार्ट से लाते हैं उसे हम कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। तो अभी आपको दो चीज़ें तो पता लग गई कि हमारे पास हमारी जो पूरी बॉडी है, बॉडी से हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है उसे हम कहते हैं वेना केवा, ठीक है। और हार्ट के स्पेसिफिक सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, राइट एट्रियम में आके। तो आप देख रहे हो ये जो इन्फीरियर वेना केवा ये भी जाके यहाँ पे राइट एट्रियम में खुल रही है, और जो ऊपर से सुपीरियर वेना केवा है ये भी आके राइट एट्रियम में खुल रही है। सो राइट ऑरिकल में क्या होता है या फिर राइट एट्रियम में क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के राइट एट्रियम में आता है, ओके। होगा राइट एट्रियम से जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। और यहाँ पे ये वॉल्व्स लगी हुई हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। यहाँ से आया वो राइट वेंट्रिकल में। अभी राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाएगा, लंग्स तक जाएगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स तक जाएगा प्योरिफिकेशन के लिए। तो अभी राइट वेंट्रिकल से कौन सी ब्लड वेसल निकलेगी, पल्मोनरी आर्टरी, ये जो निकल रही है ये इसको हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी, और ये कहाँ तक जाएगी, लंग्स तक जाएगी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे गई, हमारे लंग्स तक गई। फिर लंग्स में क्या होगा, प्योरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल के बाद कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी मतलब कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वहाँ से कहाँ जाएगा, वो लंग्स में, और फिर लंग्स से कहाँ आएगा, वापस से हार्ट में आएगा। तो अब क्या होगा, लंग्स में प्योरिफिकेशन के बाद वहाँ से पल्मोनरी वेन निकलेंगी, ये पल्मोनरी वेन, और ये कहाँ पे आके लगेंगी, लेफ़्ट एट्रियम में आके ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो लेफ़्ट एट्रियम में आएंगी, ठीक है। तो फिर अभी जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो लेफ़्ट एट्रियम में आके रहेगा। अभी लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर है, वरना अभी हम एक फ्लो चार्ट बना के देखते हैं अभी, ओके। स्टार्ट। So we would make a chamber, like we will make it simple, really simple, okay. So this you could just mention a heart and we will make it 4 chambers. क्या है, हार्ट है, और आप देख रहे हो राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पहले क्या होगा, ऊपर से हमारे पूरे बॉडी पार्ट से यहाँ से निकलेगी सुपीरियर वेना केवा और यहाँ से इन्फीरियर वेना केवा, और ये राइट एट्रियम में आएंगी और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेंगे। अभी राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी, क्या पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, वो लंग्स में जाएगा, ठीक है। फिर लंग्स में प्योरिफिकेशन होगा और वहाँ से 4 पल्मोनरी वेन्स निकलेगी। ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स निकलेंगे और वो कहाँ पे आके ज्वाइन करेंगी, लेफ़्ट ऑरिकल। फिर लेफ़्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन थी यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो अभी लेफ़्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, ये जो दिख रही है यहाँ से हमारा एरोटा है, एरोटा से पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्या है, एक सिस्टम है। पहले हमारे पास सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट होगा। राइट ऑरिकल, वी कैन से राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक जाएगा, प्योरिफिकेशन होगी। फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन में आएगा, पल्मोनरी वेन से फिर लेफ़्ट ऑरिकल, और फिर लेफ़्ट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल से एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। सो आई थिंक अब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है। तो रिवीजन ले लेते हैं हम। तो हमने चैम्बर्स पढ़े, तो हमारे पास जो चैम्बर्स हैं वो कौन से हैं, सो वी हैव राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, वी हैव राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गए हमारे चारों चैम्बर्स। उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। तो 2 वेसल्स हैं जो हार्ट के अंदर एंटर कर रही है। पहली है हमारे पास वेना केवा।
वेना केवा में पता है दो तरह की होती है, एक होती है सुपीरियर या फिर एंटीरियर और एक होती है इन्फीरियर या फिर पोस्टीरियर। ठीक है। सेकंड हमारे पास जो हमारे हार्ट के अंदर एंटर करती है वो है हमारे पास पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी जो वेन होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और वेना केवा क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वेना केवा बॉडी पार्ट से हार्ट तक और पल्मोनरी वेन लंग से हार्ट तक। ओके। अब हम देखेंगे कि ऐसा ऐसे कौन से वेसल्स हैं जो हमारे हार्ट को लीव करते हैं। तो सबसे पहला तो है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, हमारे राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है और इसके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेकेंड है हमारे पास एरोटा। एरोटा जो है वो क्या करती है, हमारे पास जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उससे ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करती है और ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है। ठीक है कोरोनरी आर्टरीज वाला। अभी कोरोनरी आर्टरीज क्या होती हैं, ये ऐसी आर्टरीज हैं जो कि हमारे एरोटा जो होती है, हमारे हार्ट में जो एरोटा है उसके बेस से ये अराइज करती हैं और ये क्या करती है, हमारे हार्ट को ब्लड, अभी देखो हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो हार्ट को भी ब्लड चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए कोरोनरी आर्टरीज हमारे हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करती है। ओके। और इससे क्या होता है, अगर मान लो कोई भी एरिया है, ठीक है, कोई भी एरिया है उसके अंदर डेडनिंग, मतलब कि सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं मतलब कि उस स्पेसिफिक हार्ट मसल के अंदर, तो उससे होता है हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है। इसको हम पॉपुलर लैंग्वेज में हार्ट अटैक भी बोलते हैं। और सेकंड हमारे पास एक और डिसीज़ है एंजिना पेक्टोरिस। जब हमारा क्या होता है, सिवियर चेस्ट पेन होता है, और वो क्यों होता है, क्योंकि इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड होता है हमारे हार्ट मसल्स के अंदर, तो उस टाइम पे एक चेस्ट पेन होता है जिसे हम कहते हैं एंजिना पेक्टोरिस। तो वॉल्स क्या होती हैं, ये एक हम कह सकते हैं कि ये प्रिवेंट करती है बैकफ्लो ऑफ ब्लड को हमारे हार्ट के अंदर। ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आर्टरीज़ के अंदर कभी भी नहीं होती, वॉल्स हमेशा वीन्स के अंदर होती है। ठीक है। और ये पॉकेट शेप्ड होती हैं ऐसी, और ये क्या करती है, ब्लड जब भी आगे ट्रांसफ़र हो रहा होता है उसके बाद ये क्लोज हो जाती है ताकि ब्लड दोबारा से उसी प्लेस पे ना आ सके और वो आगे मूव कर सके। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है। और then third we have pulmonary semilunar valves and the last one is aortic semilunar valves. So first of all let me show it to you and then we are going to study about them. वेंट्रिकल के बीच में है। ठीक है। ये वॉल्व है ट्राइकस्पिड, मतलब कि इस तरीके से 3 फ्लैप्स हैं दोनों साइड, इन टोटल 6। ओके। तो ये है हमारे पास वी कैन से दैट राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, मतलब कि राइट साइड है और एट्रियो और वेंट्रिकुलर के बीच में वॉल्व है, सो इसलिए राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है। अब हम इस साइड देखते हैं, तो ये क्या है, बाइकस्पिड, और इसका दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व, और इसको इफ़ आई हैव टू से सो यू कुड सी 2 फ्लैप्स। ओके। और ये कहेंगे, इसका जो नेमिंग होगी वो हम कैसे रखेंगे, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास 2 रहती हैं, थर्ड वन थी हमारे पास पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व। तो देखो पल्मोनरी सेमीलूनर, पल्मोनरी तो मतलब कि हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी कर क्या रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक लेके जा रही थी। तो यहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट है इसे हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व। सेमीलूनर मीन्स जैसे हमारा मून जो होता है, ठीक है, लूना मीन्स मून, और मून जब हाफ शेप का होता है ना, उसको हम मतलब वो उस तरीके से बता रखा है इन्होंने कि उसकी शेप क्या है, सेमीलूनर है, सेमीलूनर वॉल्व्स। ओके। सो कुछ इस तरह की क्या होती हैं, वॉल्व्स होती हैं। See their shapes like they close like that and they are like the moon. Okay, half moon, semilunar. Now the last one is aortic semilunar valve. So ये भी semilunar होती हैं शेप में, और ये aorta है like, and so this is aorta and you have here valves in it. In aorta ये aorta आ रहा है और ये आप क्या है, semilunar valves देख पा रहे हो। ओके। and there are 3 in number and also the pulmonary artery के अंदर जो valves थी वो भी 3 in number है। ओके।
Okay. So located between the right auricle and the right ventricle, it has three thin triangular leaf-like flasps or cusps and is therefore also called tricuspid valve. Held in position by chordae tendineae arising from the muscular projections of the ventricle wall known as papillary muscles. तो अभी हमने दो न्यू वर्ड्स देखे, कॉर्डे टेंडिने और पैपिलरी मसल्स. इनके बारे में भी हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. Okay, now next one is our second valve, that is left atrioventricular valve. So it is located in a similar way on the left side of the heart, means between the left auricle and left ventricle. It has two cusps and is therefore called bicuspid or mitral valve. One is pulmonary semilunar valve. So it is located at the opening of right ventricle into the pulmonary artery. These are pocket shaped and 3 in number. Okay, 3 in number. Now aortic semilunar valve, so we could see that it is located at the point of origin from left ventricle. These are also 3 in number and pocket shaped numberings, and with that we have written the steps. So number 1 is this one, that is our right auricle. So blood enters right atrium from superior and inferior vena cava. तो हमें पता है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से. ओके, यहाँ से और यहाँ से क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है. 11 नंबर जो है हमारा क्या है, व्हाट इट इज़, वेना केवा. तो 11 नंबर जो आप देख पा रहे हो ये क्या है, हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा. यहाँ से ब्लड 1 के अंदर आ रहा है, मतलब कि इन दोनों से ब्लड कहाँ पे आ रहा है, हमारे राइट एट्रियम में आ रहा है. ठीक है. सेकेंड हमारे पास क्या है यहाँ पे, सेकेंड हमारे पास है ट्राइकस्पिड वॉल्व या फिर राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व. तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड इन राइट एट्रियम फ्लोज थ्रू राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व इनटू राइट वेंट्रिकल. तो अभी 1 मीन्स राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, और कहाँ से जाएगा, जो ये वॉल्व्स हैं इनके अंदर से जाएगा. थर्ड क्या है, कंट्रैक्शन. अभी थर्ड हमारे पास क्या है, कंट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फोर्सेस पल्मोनरी वॉल्व ओपन. अभी हमारे पास ये यहाँ पे क्या है, राइट वेंट्रिकल है, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, हमारा थर्ड मतलब कि यहाँ पे कंट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे कि जो पल्मोनरी वॉल्व हैं वो ओपन हो जाएंगे. ठीक है. फोर्थ क्या है, ब्लड फ्लोज थ्रू पल्मोनरी वॉल्व इनटू पल्मोनरी ट्रंक. पल्मोनरी ट्रंक मतलब कि यही पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हमारा ब्लड फ्लो करेगा. फिफ्थ हमारे पास क्या है, ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड. फिफ्थ वन इज लाइक लंग्स है ना. So blood is distributed by right and left pulmonary arteries to the lungs where it unloads CO2 and loads O2. तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जो ये हमारे पास आर्टरी है, जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है. ठीक है. एक जो है राइट लंग्स के अंदर एंटर करती है और एक लेफ्ट लंग्स के अंदर एंटर करती है. ठीक है. और वहाँ पे CO2 को अनलोड करके ऑक्सीजन अपने साथ ब्लड में लेके आती है. सिक्स्थ है हमारे पास ब्लड रिटर्न फ्रॉम लंग्स विया पल्मोनरी वेन्स टू लेफ्ट आर्टरियम. तो अभी क्या होगा, जो सिक्स्थ के हमारे पास पल्मोनरी वेन्स है, दोनों जो हमारी लंग्स है उसे 2 क्या निकलेंगी पल्मोनरी वेन्स, और टोटल में 4 जो पल्मोनरी वेन्स है वो हमारे कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर एंटर करेंगे. सेवंथ क्या हमारे पास, ब्लड इन लेफ्ट एट्रियम फ्लोज थ्रू लेफ्ट एवी वॉल्व इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ब्लड जो है अभी वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा, कहाँ से, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व से. अभी एट्थ क्या है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल सिमल्टेनियस विद स्टेप 3. मतलब कि जिस टाइम पे राइट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्शन होगा और ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाके लंग्स में जाएगा, उसी टाइम पे हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी भी कॉन्ट्रैक्शन होगी, और क्या होगा, एओर्टिक वॉल्व ओपन हो जाएंगे. ठीक है. एओर्टिक वॉल्व्स ओपन होने के बाद क्या होगा, ब्लड फ्लोज थ्रू एओर्टिक वॉल्व इनटू असेंडिंग एरोटा, और एरोटा से फिर पूरे बॉडी पार्ट में एवरी ऑर्गन के अंदर. सो ब्लड इन एरोटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी ऑर्गन इन द बॉडी वेयर इट अनलोड्स ऑक्सीजन एंड लोड्स CO2, जहाँ पे वो ऑक्सीजन छोड़ के आती है और अपने साथ CO2 लाती है. और फिर वहाँ से क्या होता है, वो ब्लड किसके अंदर जाता है, वेना केवा में जाके वापस से सर्कुलेशन चलती रहती है. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. So I think it is enough for today, and we have done all the things mainly concerning with the heart. Some of the things like we have to understand about the heartbeat, about the sound slub and dub, then about the pacemaker, and all about the blood vessels.
And this, we are just studying about the blood, up to here. Then we are going to talk about the lymph and the intracellular fluid as well. So thank you, and please subscribe to our channel if you have not done it yet, for the more amazing videos you could see easily. Okay, you just get a notification out there.